Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 99 for that topic sexual reproduction in flowering plants. In the last video, we have started the study of this article advantages of seed habit, and almost 4 points I have discussed in that last video. Do refer that. That is very important. Okay. First is the new genotype is possible there. New genetic combination because that seeds are produced after sexual reproduction that we have seen. So these plants can take part in organic evolution. Second important thing is that this is having the ability of dispersal, produces adaptive structures so that dispersal of seed is possible and the crowding will not be there and the colonies of the plants can get established at different places. Third point we have seen that was the embryo and endosperm. Both are really wonderful structures present in the seed. Because of that, the young seedling can develop very nicely. And lastly, the fourth point was there, hard coat. That very tough hard coat is there, hard seed coat is there. बीज आवरण वो टफ रहता है, उसकी वजह से seeds get protected very well. Now, my friends, we have to learn few very interesting points here from this. That advantage is one of the advantages is dehydration and dormancy. अब ये dormancy क्या है? Dehydration we know, loss of water. Seeds are dry structures we know. Seeds जो होते हैं वो dry structures होते हैं. कौन सा भी seed देख लो आप. Because the dehydration has occurred. बाद में उसको अगर पानी में हम डुबो के रख देंगे, it may get imbibed, swell. ओके ये सोलन करेंगे बिकॉज वाटर विल बी टेकन इनसाइड और वो ऐसे स्प्राउट ग्रेन्स हम खाते हैं. दैट हैपन्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन. पर ये ड्राई कंडीशन में रह सकती है. एंड डॉर्मेंसी पीरियड क्या है? दैट एम्ब्रियो रिमेन्स इनएक्टिव फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड टिल द फेवरेबल कंडीशंस आर नॉट देयर. दैट इज नोन एज डॉर्मेंसी period of the seed. That particular where the embryonic growth is temporarily arrested. Dormancy period is that where embryonic growth is temporarily stopped, arrested. It will not grow till the external conditions are not favorable. जैसे कि particularly water availability. Second thing is temperature. Third condition is there that particularly availability of that proper place there, soil. तो वहाँ पे वो ये सीड जो है वो लाइट कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इस कंडीशन पे उसका जर्मिनेशन डिपेंडेबल है. टिल दैट कंडीशन इज नॉट देयर इट रिमेन एज इट इज. बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है दोस्तों. हमारे लाइफ में सभी डेज फेवरेबल नहीं होते. सम ऑफ द टाइम्स यू सी दैट द डेज आर नॉट फेवरेबल, द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल. पर्टिकुलरली जो बिजनेस हम करते हैं तो देखते हैं दैट कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल नाउ. तो उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? विदाउट वरीज वी शुड ट्राई टू सस्टेन आवर सेल्फ विथ काम एंड कूल माइंड, विथ पेशेंस. अगर धैर्य से उस टाइम हम रहेंगे तो बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन आएंगी. रात के बाद में दिन तो आने वाला है, कहाँ जाएगा? तो उस टाइम हमारी ग्रोथ जो है वो करना चाहिए. सेम थिंग इज शोन हियर बाय द सीड. सो दैट्स व्हाई डॉर्मेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल इट स्टार्ट्स द जर्मिनेशन. ओके, तो ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली अभी इसमें क्या है दैट सीड्स कैन बी स्टोर्ड. सीड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड. दे कैन बी यूज देयर. अब हम ये जो भी सीरियल्स खाते हैं, ज्वार है, व्हीट है, मेज है, ये स्टोर भी करके रखे जाते हैं. हम उसको खाते हैं जब चाहिए तब. इवन इफ वी वांट सम ऑफ देम वी कैन carry out the cultivation, we can use for sowing purpose. उसका ही कुछ पार्ट हम सोइंग के लिए यूज करते हैं.
जमीन में फिर एक बार उगाने के लिए प्लांट नया. So that is possible. So we cannot imagine the agriculture without the storing capacity of the seed. स्टोरेज कैपेसिटी जो सीड की है उसके बिना तो हम एग्रीकल्चर को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे. अगर सीड फॉर्म होने के बाद इमीडिएट अगर वो जर्मिनेट अगर करता था, then that would also not be very much beneficial to us. ओके, तो ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है. एग्रीकल्चर वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट डॉर्मेंसी पीरियड ऑफ द सीड. ओके, देन सेकंड थिंग इज देयर वायबिलिटी. अब ये वायबिलिटी क्या है? ओके, इट इज दैट पीरियड अप टू विच is the period up to which embryo can be kept dormant or can remain dormant. Okay, it can be kept यानी artificial भी कर सकते हैं और can remain dormant. Okay, and alive also. And alive. कितने दिन तक वो वहां पे टिक सकते. जैसा हम देखते हैं अभी बीच में कोविड का पीरियड आया था, लॉकडाउन हो गया था. तो जो जिनका रोजी रोटी का प्रॉब्लम है, हर रोज कमाएंगे तो खाएंगे, सो दैट पीपल सफर्ड ए वेरी लॉट आई विल से. फिर बाद में सोशल ऑर्गेनाइजेशन आ गए, बाद में फिर गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी हेल्प दी, वो ठीक है. पर उनको ज्यादा प्रॉब्लम क्योंकि उनकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा नहीं है. उनके पास जो भी कुछ था खाने के लिए घर में रखा हुआ या पैसा थोड़ा बहुत, उससे जितना भी चल सकता था उतना चल गया. बाकी एक दो दिन के बाद तो वो भूखमरी जो है उसका सामना करना पड़ा, इजंट इट. पर जो अच्छे घर के लोग थे, जिनके पास बैंक बैलेंस था, जिनके पास कुछ घर में भी स्टोर फूड था, they could survive very happily and they enjoyed that lockdown period. बहुत सारे लोगों को आप देखो जो धनवान थे, उन्होंने लॉकडाउन में फियर था माइंड में क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन दे स्टार्टेड एंजॉय. फिर गवर्नमेंट ने भी देखो आप टीवी सीरियल्स चालू कर दिए थे, फिर एक बार रामायण, फिर एक बार महाभारत, दिन भर पड़े रहते थे. नेट चालू था उस टाइम, बैंकिंग का पूरा ट्रांजेक्शन चालू रहता था. दैट वाज द एडवांटेज. तो उस टाइम सस्टेनेबिलिटी यानी वायबिलिटी उन लोगों की बहुत ज्यादा थी. सुस्त हो गए फिर, इजंट इट. 2 महीने 4 महीने चलने तो यार, आराम करे, इतना टाइम कभी मिला हमको? कभी नहीं मिला. माइंड में था फियर, बट ओके, दैट फियर लेटर ऑन वेंट ऑन रेड्यूसिंग. पर जिनके पास था वो सस्टेनेबल थे, वो वहां पे अच्छी तरह से पूरे सस्टेन हो गए उस पीरियड में, तो उसे कहते हैं वायबिलिटी. सो फॉर दैट वायबिलिटी अब हमें ध्यान में रखना चाहिए, घर में हमारा जो ग्रोसरी मटेरियल है वो सफिशिएंट होना चाहिए. हर एक महीने का 2 महीने का स्टोर करके रख दो. आज नहीं तो कल लाना है. जितने भी आइटम स्टोर हो सकते हैं वो स्टोर करके रख दो, कल का भरोसा नहीं है. बैंक बैलेंस अच्छी है. लिक्विडिटी ऑफ द फंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड. लिक्विडिटी का मतलब क्या है? यानी कैश अमाउंट, रोकड़ा. आजकल चलता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पर इंटरनेट नहीं चला तो क्या करेंगे? तो कुछ रोकड़ा भी होना चाहिए. ये बात ध्यान में रखो, कोविड ने बहुत सारे लोगों को सिखाया है. तो ये सस्टेनेबिलिटी जो है उसे कहते हैं वायबिलिटी. पीरियड अप टू विच एम्ब्रियो कैन बी केप्ट डॉर्मेंट एंड अलाइव और रिमेन अलाइव, दैट इज कॉल्ड एज द वायबिलिटी. तो कुछ प्लांट्स की, few plants are having few months viability only for few months. Okay, and few are having for several years. कुछ प्लांट्स की वायबिलिटी सीड्स की जो है वो सेवरल ईयर्स है, isn't it? सीड्स की वायबिलिटी चल रही है यहाँ पे, वायबिलिटी ऑफ सीड्स. So even after 1 year, 2 year, they will be given to the soil and water is there, conditions are favorable, they can germinate to young plant. वो जर्मिनेशन करेंगे, यंग प्लांट तैयार करेंगे, उसे कहते हैं वायबिलिटी. बाद में वो बिल्कुल फ्लरिश हो जाएंगे. कुछ प्लांट्स की सेवरल ईयर्स की है, एंड दैट्स व्हाई दे कैन बी स्टोर्ड वेरी इजीली.
And there are some examples actually which are showing recorded that record break dormancy and what is that viability. तो वो दो एग्जांपल्स हमें याद रखना है अच्छी तरह से. वन इज देयर ल्यूपिनस आर्क्टिकस. एग्जांपल देखो, ल्यूपिनस आर्क्टिकस फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा. आर्कटिक रीजन में टुंड्रा जो रीजन है वहां से एक्सकेवेशन करके निकाला है ये सीड इस प्लांट का. कुछ कौन से प्लांट का? ल्यूपिनस आर्क्टिकस. एंड व्हेन दैट एज ऑफ दैट रेडियोकार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं उससे उसका एज सीड का जब चेक किया, सो इट वाज फाउंड टू बी ऑफ 10,000 years ओल्ड. 10,000 साल पहले वो उस रीजन में जो गिर गया था अंदर in that Arctic region, when that is excavated, its life was found to be, age was found to be 10,000 years. तो और उसके बाद भी उसने जर्मिनेशन दिखाया. Okay, this plant got cultivated later on also after 10,000 years when the experiment was done. Really unbelievable. Okay, that is called viability. Record, एक रिकॉर्ड मालूम पड़ा. वैसे ही एक रिसेंट रिकॉर्ड जो दिखा है उसका भी एग्जांपल दिया है सीबीएसई बुक में, उसको अच्छी तरह से याद करो. दैट फ्रॉम 2000 years ऑफ डॉर्मेंसी एंड वायबिलिटी. ये वायबिलिटी जो है 2000 साल की सीड है. ये कहाँ पे मिले ये सीड? किस प्लांट के मिले? फिनिक्स डैक्टिलीफेरा यानी डेट पाम, खजूर का प्लांट है ये. isn't it? Phoenix dactylifera, date palm. And the seeds of that plant were excavated from during the excavation of King Herod's palace near Dead Sea. डेड सी के नियर जो किंग हेरोड्स का पैलेस था उसका जब एक्सकेवेशन किया जा रहा था, एट दैट टाइम वो मिल गए सीड्स. वो सीड्स जो है वो डेट पाम के थे और उसका एज डिटेक्ट करने के बाद 2000 साल के ये सीड से ऐसा मालूम पड़ा. और उस प्लांट का नाम क्या है? डैक्टिली, फिनिक्स डैक्टिलीफेरा. और वो सीड जब जमीन में उगाने के लिए दे दिए, डेफिनेटली द प्लांट्स गॉट कल्टिवेटेड. दैट्स व्हाई वायबिलिटी इज 2000 years. वंडरफुल. अब ये डेड सीड क्या है? डेड सी थोड़ा जनरल नॉलेज भी चेक करो आपका. डेड सी जो है एक्चुअली सी नहीं है, दैट इज ए सॉल्ट लेक. ये एक सॉल्ट लेक का नाम है. जनरल नॉलेज में आप ध्यान में रखो. दैट इज एट द बॉर्डर ऑफ इजराइल एंड जॉर्डन. ये इजराइल एंड जॉर्डन के बॉर्डर में है. ओके. और उसे सॉल्ट लेक को, पूरा सॉल्ट है वहां पे भरा हुआ. डेड सी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज गॉट नो लाइफ. या ऐसा एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहां पे, नो लाइफ इज देयर. क्योंकि सॉल्ट कंडीशन इतनी भारी है वहां पे, तो लाइफ कैसा हो सकता है? नो फिशेस, नो प्लांट्स, नथिंग लाइक दैट. तो ये यहाँ की सीड्स जो है इसके नियर वो था किंग हेरोड्स का पैलेस और वहां पे ये मिला है. सो आई एम श्योर दैट यू मस्ट अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स वेरी प्रॉपरली. सो डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स and do learn that articles very nicely. We shall meet again in the next lecture. So please give likes and share to this video and to this channel also. Thanks a lot.